actually asked me what's the applications of differential equations. So we are in till class 12 learning the various methods how to solve a differential equation. But as you must have heard, you must be aware that naturally those topics which you are studying, they must have got their real life applications, maybe studied at higher level. Some of you definitely, or most of you, will join IITs or Delhi College of Technological, whatever, I mean engineering. So there you are going to learn more about it. Some of you may go into the software industry, you will find much more applications over there also. So even it is a hardly matter a chemical industry, your biotechnology, biomathematics. So all these have got their relevance and applications. Specifically when I talk about the differential equation, so उस केस में I like to tell you about 2-3 main applications. Years back, I studied one mathematical journal, international journal. Some research was published, and that was by 3 African mathematicians. Generally, we do not hear the name of African mathematicians, but that came to me as a surprise also, and it was very amazing to read that information. Uh, we know that there are the oil reservoirs, huge oil reservoirs beneath the ocean, and oceans are thousands and thousands of kilometers, right? And beneath the oceans be 8 to 10 kilometer. So down the ocean 8 kilometer at some place there might be billion trillions of that barrels of that liquid, that petrol, diesel, and all these are available. But how to locate that? It's not so easy task, right? Mathematicians, they using the methods of differential equations somehow were able to tell that the maximum, the more probability, where is the probability inside the ocean. So using differential equation. Now, how they have done it, of course, I'm not well aware of that. But those who will go for the higher mathematics or go for the research work in mathematics, they may get to know about this. Second, अगर मैं application की बात करूँ तो most of you might have seen that CBI या CID, वो serial वगैरह भी, वो आपके दया वया वाले आते हैं जो, तो आई मीन ही यूज टू टेल कि हाँ पर्सन की डेथ है वो इतने बजे हुई थी, मर्डर इतने बजे हुआ था. तो हाउ दे एक्चुअली मेक दैट गेस? तो वो जो काम कर रहे हैं, दे आर सॉल्विंग रियली द डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब वो चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रहा है, बट उनके प्रोग्रामिंग के अंदर बिहाइंड द स्क्रीन देयर आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच आर वर्किंग. कि रूम टेम्परेचर क्या रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, उस पर्सन का उस समय जब आइडेंटिफाई हुआ, उसकी बॉडी में लिए तब क्या टेम्परेचर था, टेम्परेचर डिफरेंस, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, right? So everything is being used and there in the use of differential equations scheme. Similarly हम बात करते हैं किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ की. लाइकवाइज रिसेंटली अगर मैं वायरस की बात करूं तो कोरोना, तो वो ग्रोथ वो किस तरह से अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उनकी जो ग्रोथ स्टडी करी जाती है, देयर कम्स द आइडिया ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. एंड देयर इज अ मेथड नॉन एज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग. सर्टेन हाइपोथेसिस आर देयर, और उनको जस्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए लॉट ऑफ मैथमेटिशियंस अराउंड द ग्लोब, they are working on it. So it is not only the task of the doctors जो या इस तरह के रिसर्चर हैं जो इस चीज की मेडिसिन में लगे हुए हैं. मैथमेटिशियंस आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट फिजिबल पॉसिबल सॉल्यूशन दे आर सजेस्टिंग. तो उसमें भी एक दो मैंने रिसर्च को स्टडी करा था. बट द ओनली प्रॉब्लम इज अनलेस every person on this earth understand the meaning and the real sense the idea of that social distancing, इम्पॉसिबल है इसको कंट्रोल कर पाना. सो नाउ डेज 7 मंथ हो गए हैं, ऑलमोस्ट पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड. तो लगता है कि बोर हो रहे हैं घर में, थोड़ा थोड़ा सा फ्रेंड से मिल लेते हैं या थोड़ा बाहर घूमाते हैं, या कोई गोवा जा रहा है. बिकॉज ऑन माई फेसबुक इवन आई कुड सी माई नोन देयर, आई मीन माई रिलेटिव्स ऑल्सो, या फ्रेंड्स करते हैं वो मिल रहे हैं. सो वो जो मिलना है, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग कहती है, दैट इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट.
बट वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वो तभी ट्रू हो सकता है जब उसमें एक मिनिमम लेवल की बात करी गई है कि अगर ये अचीव हो गया, और उसका मतलब क्या कि आपने इतने दिनों तक पूरे वर्ल्ड के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दिया, शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए द थिंग्स आर बीइंग डिलेड। तो जो अभी तक क्योर हो सकता था मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली, वो फिर इम्पॉसिबल में सिचुएशंस आ जाती हैं। और भी ऐसे एप्लीकेशंस को मैंने स्टडी करा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, अगर हम बात करते हैं। सो जो मुझे ध्यान आते रहेगा, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू। Next, let me talk about few miscellaneous problems. Mainly मैंने NCERT miscellaneous से लिया है। Check it out. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। dy ओवर dx, ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया और रूट को सेपरेट कर दिया एंड रीअरेंज। सो that's a simple step of this question. Integrate both the sides, you will have your required answer. So this is sin inverse y is minus sin inverse x plus c. अब आप sin inverse c लें, वो आपकी चॉइस थी, नहीं तो रीअरेंज करने के बाद sin inverse x plus sin inverse y is c. आंसर बेटर इसी फॉर्म में एटलीस्ट यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं इसको आगे शुरू कर भी दूं, फार्मूला मैं एज्यूम कर रहा हूं कि चलो आपको याद भी है, तो फिर वो उससे एक्चुअल में इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन वो देखने में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन सा ही आ जाएगा ये। एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ c, जिसे आप c डैश एज अ न्यू कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इसलिए इतना आगे जाकर सॉल्व करने की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं हो। चेक आउट दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट when x 0, y pi by 4. This is an initial value problem. If condition is given, we will make use of it. Finally, once I have the solution, to get the value of c. और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दी हुई है, बस इससे आप साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स को लिख लेंगे माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई डी वाई एंड साइन एक्स बाय कॉस एक्स। रीअरेंज कर रहा हूँ बस मैं एक्स और वाई की टर्म्स को, साइन वी अपॉन कॉस वाई डी वाई। सो tan x dx minus tan y dy, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। सो tan x का इंटीग्रल हो गया log ऑफ सीकेंट x माइनस में log ऑफ सीकेंट y। यहाँ चलो आई वुड प्रेफर log c, तो ये इधर आकर log में प्लस हो जाएंगी टर्म्स। सो log ऑफ secant x secant y will be log c, और secant x secant y आ गया c के इक्वल। अब आपको ये कंडीशन गिवन थी, इसका मतलब secant 0 इंटू secant पाई बाय 4, ये मुझे c की वैल्यू दे रहा है। x और y की वैल्यू रिप्लेस कर दिया। सो व्हाट इज secant 0? 1। व्हाट इज secant पाई बाय 4? √2। तो c की वैल्यू √2 आ गई। Therefore required solution is secant x secant y is equal to √2। अब इसके बाद secant x secant y को आप प्लस माइनस √2 कह के लिखना चाहते हैं, या ऊपर मान लो आपने मॉड नहीं भी लगाया, तो 99.9% कोई भी मार्क्स इस चीज के डिडक्ट नहीं करता है।
आई होप दिस इज क्लियर चैट बॉक्स में। ओके आप लिखते रहिए, मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ थोड़ा। ओके ठीक है। ओके चलिए ठीक गुड या फाइन। Another very simple question, that's for your homework. करके देख लीजिएगा, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल में ही आ रही है। कंसिडर दिस क्वेश्चन, solve the following differential equation. The presence of x by y suggest कि आपको इसे होमोजीनियस उस मेथड से करना है। सो y e power x by y dx is x e power x by y plus y square into dy। ये गिवन है, याद रखिए क्योंकि x बाय y है तो आपको एक तो dx बाय dy एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये आ गया। बस इसके बाद पुट x बाय y को v, दैट इज x इज इक्वल टू vy। सो डिफरेंशिएट अब इसको कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, बोथ साइड्स। तो dx ओवर dy क्या बन गया, इट्स अ प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन वन, ये आपके यूजुअल स्टेप्स हैं। dx बाय dy, dx बाय dy इसकी वैल्यू रख दिया v प्लस वाई dv बाय dy इज इक्वल टू, याद रखिए आपको x की वैल्यू अब यहां रिप्लेस करनी होगी तो vy और e की पावर v प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया y इंटू ई की पावर v। क्योंकि हमने सिर्फ ये x की वैल्यू तो ये रिप्लेस करा है, ऑब्जर्व दैट ऊपर और नीचे से y कैंसिल कर दो तो x सॉरी v ई पावर v प्लस एक y बचेगा अपॉन ई पावर v। y dv बाई dy इज इक्वल टू, ये आपका RHS में आ जाएगा माइनस v, टेक द LCM, सो ये और ये कैंसल। आप चेक करिए वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं और उसमें भी क्या हुआ y dv बाई dy किसके इक्वल बच गया y अपॉन ई पावर v। y से y भी कैंसल होगा तो e पावर v dv इज इक्वल टू dy। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, सो e पावर v और इधर आ गया y प्लस c। v की वैल्यू v था आपका x अपॉन y and this is equal to y plus c, your required answer.
सम अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन। चलो वैसे ये बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस साल आया था सीबीएसई में दिल्ली में। मतलब अगर आप इस साल पे मतलब दिया होता लास्ट ईयर मतलब अगर पेपर, तो ये क्वेश्चन आपके पास था बोर्ड का 4 मार्कर, अब के पैटर्न में 3 मार्कर हो गया है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट दिस क्वेश्चन फॉर पास्ट 10 ईयर्स। स्पेसिफिक ये क्वेश्चन आप चेक करो, एनसीईआरटी की मिसलेनियस में दिया हुआ है। बट डिड यू नोटिस हमने मेथड कौन सा लगाया है इसे सॉल्व करने का? एक्स बाय वाई को देखते ही होमोजीनियस, but unfortunately the given equation is not homogeneous differential equation। आप पहले ही स्टेप में हम अपने आप क्विकली चेक करके देख लेना लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई वाला मेथड, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये होमोजीनियस तो है ही नहीं। बट द बेस्ट पार्ट, सॉल्यूशन इज परफेक्ट क्योंकि इससे इजीली सॉल्व हो रहा है। देयरफॉर वी आर यूजिंग दिस मेथड डिस्पाइट कि वो होमोजीनियस में अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज नो अदर वे, अदरवाइज इसका एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बट वो थोड़ा और टिपिकल चीज़ों को यूज किया जाता है। आई इवन नीड टू सर्च फॉर दैट, आई सॉल्व दैट ईयर्स बैक। तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि जनरली हम इसको इसी वे में सॉल्व कर रहे हैं। Check out this next question. Find the particular solution of this differential equation x minus y into dx plus dy is equal to dx minus dy, and some initial value condition is also given. सबसे पहला काम रीअरेंज, ओपन द ब्रैकेट करते हैं यूजुअल मल्टीप्लाई वगैरह करके, माइनस में आ गया फिर y के साथ। रीअरेंज, सो dx वाली टर्म एक साथ कर देते हैं, x माइनस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स एंड प्लस dy के साथ आ रहा है x माइनस वाई प्लस 1 इंटू dy एंड दैट इज इक्वल टू 0। और x minus y minus 1 into dx is equal to minus of x minus y plus 1 into dy। नॉर्मली तो यही करते हैं ना हम, dy बाय dx की वैल्यू लिख लेंगे, तो ये डिवाइडेड बाय माइनस, चलो बाहर कर देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1। ये तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। और अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, अब तो हम तीनों मेथड कर चुके हैं, तो ये उनमें से किस फॉर्म में है ये? इज इट वेरिएबल सेपरेबल, इज इट होमोजीनियस और इज इट लीनियर? एनीवन? यू मे अनम्यूट, यू मे राइट इन द चैट बॉक्स। किस फॉर्म में है ये क्वेश्चन? ओके, होमोजीनियस, नो उपासना, इट्स नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए सोचो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, तो डिग्री ही जब मैच नहीं करेगी ऊपर नीचे तो इट इज नॉट होमोजीनियस। एनीवे ये तीनों में से किसी फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल वैसे हिंट दिया ही था इन्होंने, हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं इन वेरिएबल सेपरेबल। तो प्रेजेंस ऑफ x माइनस वाई इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सजेस्ट, आप इसे सिर्फ t ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इसके बाद तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया,
विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी एक्स करना था, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है, और यहाँ आ जाएगा dt बाय dx, which gives dy by dx as 1 minus dt by dx. Differential equation 1 will reduce to, will become, क्या बन जाएगी अगर आप ध्यान से देखें, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो मैं ये रख दूंगा 1 - dy/dx, और आर एच एस में ये क्या लिखा हुआ है, टी माना था इसे, t-1/t+1, और सॉरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखी है ना, तो ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ dt आएगा, यहाँ dt आएगा, which gives us dt by dx as 1 plus t-1/t+1. Of course, LCM 1 से 1 कैंसल, 2t/t+1, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, t+1/t dt इज 2dx, इंटीग्रेट कर देंगे, और t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, x माइनस वाई, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि इनिशियल वैल्यू भी थी ना, कंडीशन भी गिवन है, तो इस कंडीशन को यूज कर लेना टू गेट द वैल्यू ऑफ सी, सी मिल जाएगा, और सी की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे, तो ना ही पुलकित ये लीनियर हुई, ठीक है, ये एक्चुअल में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो गई, पर रिड्यूसिबल वाली फॉर्म्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं ली गई हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज, अब जैसे एक क्वेश्चन पूरे में एनसीईआरटी में ये दे दिया मिसलेनियस में, तो अगर ये इस तरह का सेम क्वेश्चन बोर्ड में दे दें तो यू कैन नॉट चैलेंज इट, इसीलिए आई एम डिस्कसिंग इवन दैट ऑल्सो, जबकि 99.9% का 100% श्योर कि रिड्यूसिबल कम से कम इस साल तो बोर्ड में नहीं देंगे बिल्कुल, but the method is simple, easy to understand, please check it out. Everyone, please try it out. I'm waiting.
विच पर्टिकुलर फॉर्म, क्या लगता है 12th क्वेश्चन ये वाला किस में कन्वर्ट होगा? चैट बॉक्स में अगर आप, ओके लीनियर, वो उपासना, चलो लीनियर कह रहे हो, ओके ओके, ठीक है भव्य, लेट्स सी लीनियर, ठीक है। ये आई थिंक 3 इयर्स बैक ये वाला आया था हमारे बोर्ड में, तो ये आ गया। आप चेक करिए, दिस इंटू डी एक्स बाई डी वाई दिया था 1 के इक्वल। इस डी एक्स बाई डी वाई को आप आर एच एस में ले जाइए, सो दैट द आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और अगर मैं इसे अब थोड़ा सा बेटर वे में रीअरेंज कर दूं, ये माइनस वाली टर्म यहां आकर प्लस में आ गया 1/√x इंटू वाई, एंड दिस इज क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्म की ही है, विद p एज 1/√x एंड q आपका RHS हो गया। अब ये तो देखो आइडेंटिफिकेशन इतने क्वेश्चंस के बाद आपको आना चाहिए। ठीक है आर्यन, मैंने देखा आपका रिस्पॉन्स। सो अब वंस आई हैव आइडेंटिफाइड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, दैट्स अ सिंपल फार्मूला जो हमें याद होना चाहिए, e की पावर 2√x बचेगा। एंड लीनियर का सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into if is equal to integral q into if dx. How will you integrate this? यस, आप ध्यान से अगर इस चीज को आइडेंटिफाई करें, न्यूमरेटर में इट्स 1, सिंपली 1। एक्स पावर अगर आप कंपेयर करो, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर गेट एडेड, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में सिर्फ ये था। तो एक सिंपल इंटीग्रल बना दिया, आंसर दे दिया था वैसे मैंने देखा उपासना ने, ठीक है कृष्ण, ओके। सो y इंटू ई पावर 2√x, और ये आ गया 1/√x का इंटीग्रल 2√x प्लस c, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क शीट में बनाता हूँ, 4-5 क्वेश्चंस उसमें इसे लेने वाला हूँ। सो यू हैव टू डू इट योर ओन एंड सबमिट इट टू मी। At least now 4-5 students have started sending it. Initially only 2 were sending, but अभी 4 और 5 students हैं आपकी क्लास से जो धीरे धीरे जिन्होंने भेजा है, तो that's a good thing. Similarly ये भी क्वेश्चन होमवर्क में, ये आपका लास्ट ईयर किसी डिफरेंट रीजन में बोर्ड में आया था, तो ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होमवर्क में आपका आने वाला है। दिस इज सिंपल, ये आप अपने आप ट्राई करके देख लीजिए, डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वाले का सिंपल मीनिंग है y dx माइनस एक्स डी वाई 0 और y dx इज x dy। बस आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना था,
तो dx by x is dy by y. Integrate and match your answer. ये second form of linear differential equation is there, तो you know the method. आंसर पक्की बात है इसमें से या इसमें से होगा, क्योंकि x इंटू में वो आपका आंसर होता है, c होगा. Now few questions from the assignment. हो सकता है कोई टिपिकल भी लगे. Check out the first one. How will you do it? Please identify. Yes, anyone? Which पर्टिकुलर फॉर्म? अब तो वो ये ना आइडेंटिफाई करने वाली बात है, तीनों में से ये कौन सा है फॉर्म? ये क्वेश्चन मार्क से तो लीनियर आप कह रहे हो, तो यू आर डाउटफुल. कृष्ण, ओके. रजनीश इज सीम्स टू बी कंफर्म्ड अबाउट इट. लीनियर है. चेक करिए किस तरह से लीनियर है. dy बाई डी एक्स सेपरेट कर दो, माइनस एक्स के साथ सेपरेट करा, एंड माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. ये dy दिखा और यहां y दिखा. सो लेट मी रीअरेंज. ये प्लस में क्या हो जाएगा? cos x upon 1 plus sin x into y, and this is equal to minus x upon 1 plus sin x. आइडेंटिफाई हो चुका होगा क्लियरली. दिस इज p and this is q. इसके बाद तो ये सिंपल है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dx cos x ओवर 1 प्लस साइन x. नीचे वाले को t लिया, ऊपर डेरिवेटिव है, so that you have your if as 1 plus sin x. So complete solve in your homework. Yes, check out this question. एक सेकेंड होल्ड करना मामा. MTNL से. Okay, so check out the next question. Any idea which particular form is it? Years back this came as a 6 marker, but now I treat this as only maximum 4. Is there anyone who is able to identify it? Look carefully. 8th क्लास का एक सिंपल कंसेप्ट है ये. Combine first two and last two. Take y square common
और ये इधर आकर माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, रूट में आ गया 1 + x² इंटू 1 + y²। आई होप इसके बाद तो अब समझ आ ही चुका होगा। सेपरेट किया, it's a variable separable, so √1 + x² over x dx minus y over √1 + y² dy. Integrate both the sides. This integral is very easy. नीचे वाले को t लिया, ऊपर डेरिवेटिव। This is a challenging integral. पर्टिकुलरली मतलब आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है जो आप होमवर्क में मतलब कंप्लीट ही करिए, बट हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? चेक आउट दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट आइडेंटिफाई है, क्विकली एक्सपेक्ट कर रहा हूं चैट बॉक्स में कई रिस्पॉन्सेज आनी चाहिए। चलिए गुड, ठीक है। सो यहाँ तो वेरी नाइस, ओके चलिए गुड, क्लियर आइडेंटिफिकेशन चल गया। डी वाई और यहाँ वाई फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेंड द सॉल्यूशन, ये आपके होमवर्क का पार्ट होगा। चेक आउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the particular solution of this differential equation. Identify this differential equation. One can easily note, एक चीज तो आसान है आइडेंटिफाई करना कि आप x² + 1 से डिवाइड कर देंगे और ये कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। बट उसमें चलो ये आपका P हो गया और ये Q हो गया। ट्राई आउट इन योर होमवर्क। चलिए मैं इसके आगे हिंट भी नहीं दे रहा कि क्या करना होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शायद आपने कर लिया हो। यस, ठीक है कृष्ण। न्यूमरेटर इज एक्चुअली x² + 1 का होल स्क्वायर। ये सॉरी, ये लिखना भूल गया, साथ में cos x भी है। ये यहाँ क्वेश्चन में ही ना इनटू cos x था, तो ये cos x भी आएगा साथ में। And the last question, find the equation of a curve through this point, मतलब when x is 1, y is 0, if the slope of the tangent to the curve at any point is this. Check it out. ये आपको गिवन है, बस इसके बाद तो आपने रीअरेंज कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल, और ये वाला आपका ऑफ कोर्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा। So with this I end the class. डिफरेंशियल इक्वेशन का आप जितने भी हैं होमवर्क शीट आपको मिल जाएगी।
आई विश के इस बार कम से कम एक स्टूडेंट और एक्स्ट्रा बढ़ जाए सबमिशन के अंदर. चलिए, प्लीज टेक केयर एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. ओके, थैंक यू. चलिए, प्लीज टेक केयर. दशहरा हॉलीडेज आपकी फ्राइडे एंड सैटरडे. संडे तो आएगी या फिर मतलब अष्टमी और नवमी उसकी छुट्टी रहेगी. थर्सडे तक तो नॉर्मल क्लासेस हैं. थर्सडे देर इज अ स्कूल फंक्शन, तो हो सकता है कुछ क्लासेस आपकी अरेंजमेंट में आए या कैंसिल हो. मतलब अभी 2 दिन तो कंटिन्यूस कम से कम क्लासेस होंगी ही. चलिए, ठीक है. ओके, थैंक यू. प्लीज लीव द मीटिंग फास्ट. कृतिक, यश, मित्तल, प्रणव,